students, welcome back to ISR Academy. In this module of the chapter of human health and diseases, we are now talking about the next part of the chapter, which is the disease. In the previous module of this chapter, we finished the entire topic about the human health part. Now, today, we are going to discuss in this particular lecture, we're now talking about the diseases. We'll cover all the diseases in one go. We are trying to also cover the aspect of human health, which is cancer. We are talking about AIDS or HIV also, and then in the final concluding module we will be discussing about the adolescence or different kinds of drug abuse. So that will be kept for another module or another lecture. So अभी के लिए begin करते हैं students. We will talking about diseases. Now students, when we talk about the word disease, what do you really understand? Disease का मतलब exactly क्या है? Students, disease जो होते हैं, disease are nothing but a condition, a state or a state of condition in which you have damaged or deranged metabolic functions. So when we talk about the term or the word diseases, it simply means that it is a state of deranged metabolic functions. वैसा, ठीक है, अ स्टेट ऑफ डिरेंज्ड मेटाबॉलिक फंक्शंस, कि जहां पे आपके बॉडी के फंक्शंस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसको आप डिजीज बोलते हो. स्टूडेंट्स, डिजीज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. बहुत अलग अलग टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वन बेसिक इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंजेनिटल डिजीज. Congenital disease are those diseases which are present since birth. Okay, congenital मतलब बचपन से. So these are present since birth. ठीक है, ये बचपन से प्रेजेंट होते हैं. एंड प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो congenital disease will have no treatment. Okay, no treatment per se, but certain diseases can be curable due to the benefit of biotechnology or different forms of medicine, including gene therapy and recombinant DNA technology and all other methods by which we can try to cure the disease. But practically speaking, congenital diseases are generally very difficult to manage and also very difficult to cure. Okay, so this is congenital. Second disease can be number 2, which is called as acquired. Okay, acquired के अंदर ना गाइस दो टाइप के आ सकते हैं, दो टाइप. One, it can be communicable. Okay, one can be communicable. Another can be non-communicable. So either it can be communicable or it can be non-communicable. कुछ इस तरीके से. communicable और non-communicable का मतलब क्या है कि भाई जो diseases contagious होंगी, जो diseases spread होने वाली है, वो diseases को हम लोगों ने क्या बोला, वो सारे disease को हम लोगों ने बोला है communicable diseases. non-communicable मतलब जो ऐसे contact से transfer नहीं होने वाले हैं, for example cancer. ठीक है, diseases कोई भी रहे, हमेशा एक याद रखने का, डिजीज जो होता है, डिजीज अगर मैं पर्टिकुलरली डिजीजेस का बात करूं, दे आर ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड. ओके, दे आर ट्रांसमिटेड बाय समथिंग कॉल्ड एज पैथोजन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड पैथोजन? पैथोजन का मतलब क्या है? पैथोजन इज समथिंग, अ agent which can cause infection. Okay, agent which can cause infection. Can you name some example, guys? कोई example दे सकते हैं? It can be bacteria, it can be virus, it can be fungus, it can also be parasite. ठीक है, ऐसा. सो अलग अलग टाइप का हो सकता है. एंड ये पैथोजन जो होता है, कभी कभी कोई मामलों में दिस पैथोजन कैन बी कैरीड बाय a mechanism or
अ थिंग विच इज कॉल्ड एज वेक्टर। मतलब कभी कभार अगर डिजीजेस को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए कैरी तो करना पड़ेगा, तो कैरी करने के लिए यू हैव वेक्टर विच विल इंश्योर दैट देयर इज ट्रांसमिशन of the infection from one organism to another। स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसको किस तरीके से समझेंगे जरा देख लेना। अभी हम लोग क्या करने वाले पता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिजीजेस ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, वी आर अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस ऑफ वेरियस टाइप्स। टू बिगिन विद सबसे पहला वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट पैरासाइटिक, देन वी कैन गो ऑन टू बैक्टीरियल। ओके, फिर अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझेंगे। देन तीसरा वी आर देन गोइंग ऑन टू वायरस और वायरल इन्फेक्शंस, एंड देन फोर्थ फाइनली वी विल टॉक अबाउट फंगस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इन चारों बीमारियों के बारे में डिस्कशन करना है, चारों के चारों। All the four diseases we'll be talking about step by step. Okay, so students, moving on to the first disease, first infection, which is called as malaria under the bracket of parasitic infections. So अभी सबसे पहला अपन डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया। ठीक है, मलेरिया स्टूडेंट्स, मलेरिया जो होता है, मलेरिया इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एंड दिस पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो, अ टाइप ऑफ अ मॉस्किटो विच इज कॉल्ड एज फीमेल एनोफोलीज मॉस्किटो। मतलब मलेरिया कैन ओनली बी कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो। एनोफोलीज क्या है, एनोफिलीज उसका एक टाइप है, मॉस्किटो का एक टाइप है, तो वो एनोफिलीज मॉस्किटो ही इन्फेक्शन पर्टिकुलरली स्प्रेड करवा सकता है। मेल मॉस्किटो जो होता है जनरली इट फीड्स ऑन प्लांट सैप। प्लांट सैप का मतलब क्या, प्लांट मटेरियल पे वो फीड करता है, बट फीमेल मॉस्किटो जो होती है दैट फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, और ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, इट कैरीज, this female anopheles mosquito carries something called as malarial parasite. Mosquito does not cause the infection. Mosquito के अंदर parasite होता है, that parasite is causing the infection. अब ये parasite का नाम क्या है, this parasite is a malarial parasite. This malarial parasite belongs to the genus, it belongs to the genus of what is called as Plasmodium. ठीक है, टू जीनस विच इज प्लाज्मोडियम, और यही प्लाज्मोडियम के 4 अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, विच मीन्स कि यू हैव 4 टाइप्स ऑफ स्पीशीज। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। ये कौन से स्पीशीज है गाइस, चलो फटाफट देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट यू हैव प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके, second is called as Plasmodium ovale, third is Plasmodium falciparum, okay, and fourth is called as Plasmodium malariae। ओके, these are 4 different species कि एक होता है वाइवैक्स, देन यू हैव ओवेल, देन यू हैव फैल्सीपेरम एंड देन यू हैव मलेरिया। ऐसे 4 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास स्पीशीज हो सकते हैं। इसमें से सबसे इजी टू मैनेज इज वाइवैक्स एंड वेरी डेंजरस एंड डेडली इज फैल्सीपेरम, कैन कॉज डेथ। समझ में आ रहा है या ये कहाँ क्या बोल रहा हूं मैं। और यहाँ पे जो आपका देखो, मैं ना लाइफ साइकिल आपके टेक्स्ट बुक में हर एक इन्फेक्शन का दिया हुआ है, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल जो रहेगा वो ह्यूमन हेल्थ के अंदर, आई मीन डिजीज के अंदर हम लोग सिर्फ मलेरिया का पढ़ेंगे। उसके अलावा लाइफ साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज चैप्टर का वेटेज भी काफी छोटा है, काफी कम है, तो इतना ज्यादा हम लोग फोकस सारे लाइफ साइकिल पे नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस ज्यादातर करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट पे, जो कि काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अपन उसको समझने का कोशिश करते हैं। सो लाइफ साइकिल जो रहेगा, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन्वॉल्व्स 2 होस्ट। सो द लाइफ साइकिल ओके हैज 2 होस्ट। ये 2 होस्ट पे डिपेंड करता है।
ये दो होस्ट कौन से सबसे पहले वी हैव ह्यूमंस, ओके ह्यूमंस, एंड देन वी आल्सो हैव मॉस्किटो. So in order to complete the life cycle of the parasite has to go to two different hosts. तो सबसे पहला मान लो कि आपके पास, अभी मैं यहाँ पे उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ rather than me writing. It is something like this. ठीक है, look at it now. सबसे पहला तुम्हारे पास मॉस्किटो है. मॉस्किटो क्या करेगा? मॉस्किटो is going to inject a parasite which is called as sporozoite. ठीक है, a parasite which is called as sporozoite. स्पोरोजोइट क्या कर लिया उन्होंने? इंजेक्ट कर लिया. स्पोरोजोइट क्या है? एक टाइप का मलेरियल पैरासाइट का फॉर्म है. तो जब मॉस्किटो ने काटने से ब्लड सक करेंगे. ब्लड सक करते समय उसका सलाइवा आपके बॉडी में जाने वाला है और सलाइवा के थ्रू आपके ये पैरासाइट्स बॉडी के अंदर जाएंगे. और ये पैरासाइट्स का नाम क्या है? स्पोरोजोइट्स. दीज स्पोरोजोइट्स, ये जो स्पोरोजोइट्स रहते हैं, दीज ट्रैवल टू अ ऑर्गन व्हिच इज कॉल्ड एज लिवर. लिवर में जैसे जाते हैं, लिवर में अपना क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो कंप्लीटली सारे स्पोरोजोइट्स होते हैं, दीज पैरासाइट्स ऑफ स्पोरोजोइट्स, दीज आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन द लिवर सेल्स. जैसे जैसे उनका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, आप नोटिस करेंगे क्वांटिटी बढ़ते जा रहे तो वो लोग क्या करेंगे? सेल को बर्स्ट करवा देंगे. द मोमेंट सेल बर्स्ट्स आउट, ऑल दीज पैरासाइट्स आर गोइंग टू कम आउट. ओके, सेम प्रोसेस वो लोग आरबीसी में भी करते हैं. रेड ब्लड सेल के अंदर भी वही सेम प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पैरासाइट्स आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, causing the red blood cells to open up and burst and therefore causing multiple different symptoms. Basically आपको समझना ये है कि ये दो मेजर सेल्स को आपके बॉडी के अंदर टारगेट कर रहे हैं. कौन से दो है? सबसे पहला एक लिवर है, दूसरा आपका एक आरबीसी है. सो लिवर के अंदर भी रिप्रोडक्शन करते अपना काउंट बढ़ा देते हैं वो लोग, और आरबीसी के अंदर भी सेम प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं. सो देयर कैन बी द मोमेंट these sporozoites become matured, these have different kinds of sexual stages inside an RBC. पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते होते दे बिकम मैच्योर होने के बाद अगर मान लो कोई दूसरा मॉस्किटो है, वो दूसरे मॉस्किटो ने वापस एक बार खून सक कर लिया, तो खून जब सक करे तो उस खून से ये सारे के सारे पैरासाइट्स विल ट्रैवल इनटू द फीमेल मॉस्किटोज गट, दैट इज पेट, इंटेस्टाइन्स. सो वहां पे वो ट्रैवल करेंगे. वहां पे ट्रैवल करने के बाद वहां पे ये जो सेक्सुअल गैमेट्स बने थे, इनका फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस से स्पोरोजोइड्स बनेंगे, एंड these sporozoids will travel to salivary glands of the mosquito, and this salivary glands of mosquito is now again ready for injection of sporozoid into some other human. So can I say, अगर आप देखेंगे यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो नोटिस करेंगे ह्यूमन का होस्ट है, और यहाँ पे आएंगे तो मॉस्किटो एज अ होस्ट है. सो देयरफॉर हाउ मेनी होस्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल ऑफ 2 होस्ट. One is human, another is mosquito. You're understanding what I'm saying? Because we have 2 different hosts, symptoms also vary to a very great extent. ठीक है, सिम्टम्स भी बहुत डिफरेंशियली दिखते हैं आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मैंने सिम्टम्स का बात करना है, देखो कॉमनेस्ट सिम्टम जो है मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहला यू विल डेफिनेटली हैव फीवर, एंड दिस फीवर इज पीरियोडिक फीवर. मतलब क्या? देखो तुमको मैंने बोला था क्या, वो जो स्पोरोजोइड्स है वो लिवर में गए, लिवर के सेल के अंदर गए, तभी कोई फीवर नहीं है. एक बार वो गैमेट्स मल्टीप्लाई किए, डिवाइड कर लिए, क्वांटिटी बढ़ा दिया, सेल फट गया तो सेल सारे पैरासाइट्स बाहर. द मोमेंट सारे पैरासाइट्स बाहर आ गए, उसके बाद जैसे पैरासाइट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, फीवर विल राइज. एंड द मोमेंट ब्लड में से आपके इम्यून सिस्टम ने इसको क्लियर कर लिया, फीवर विल गो डाउन. वापस से कोई ना कोई और सेल वहां से फटेगा, वो वापस पैरासाइट ब्लड में रिलीज करने वाला है, वापस से फीवर बढ़ेगा. मतलब क्या आता है? साइक्लिक फीवर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक फीवर. ठीक है, साइक्लिक फीवर है. तो फीवर इज नॉट कंटिन्यूस बट इट इज साइक्लिक इन नेचर. ठीक है, देन व्हाट यू कैन हैव? हेडेक. ठीक है, हेडेक हो सकता है. चिल्स, ठंडी लग सकता है. ओके, यू कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम जॉइंट पेन. ओके, जॉइंट पेन हो सकता है. 4th, अनीमिया. क्यों अनीमिया हो रहा है? बिकॉज आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ओके, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे तो अनीमिया हो सकता है. 5th, एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं. फीट जिसको बोलते हैं अकड़ी, वो भी आपको दिख सकता है.
और अगर बाय चांस अनट्रीटेड आपने उसको रखा तो यू कैन ऑल्सो हैव सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया मतलब योर मलेरिया जो रहेगा इट विल अफेक्ट टू द ब्रेन। सो मेजर जो सिम्टम्स आपके हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, एंड दीज सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ऑन एन एवरेज रफली अबाउट वी हैव दीज सिम्टम्स व्हिच आर देयर. Now you have these symptoms. What can you do with these symptoms? What are the treatment options available? So now how are we treating? ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या आपके पास अवेलेबल है? सो यू हैव टू, और मेजरली देयर इज अ क्लास ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ACT. नाउ ACT क्या होता है? ACT इज RTC-मेनिसिन कॉम्बिनेशन, RTC-मेनिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी. ओके, एक आप ये दवा चालू कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो हैव सर्टन काइंड ऑफ टैबलेट्स विच इज कॉल्ड एज क्विनीन. एटलीस्ट 2 याद रखिए, मैंने जितना बताया आपको एटलीस्ट 2 आप याद रख सकते हैं. सो यू हैव सिम्टम्स, यू हैव ट्रीटमेंट, एंड हाउ कैन यू डू प्रिवेंशन गाइस? प्रिवेंशन देखो ये सब जनरल नॉलेज है, इसके ऊपर अपन ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके कोई मतलब ज्यादा है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंशन इज अ जनरल नॉलेज, राइट? सो सबसे पहला यू कैन यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स. ओके, वो अलग अलग टाइप के ब्रांड्स के जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं वो यूज करिए. देन यू कैन यूज ऑल्सो गंबूजिया गप्पी, गंबूजिया फिशेस, उसको आप यूज करिए ताकि मलेरिया का लार्वा किल हो जाए. यू कैन ऑल्सो यूज मॉस्किटो नेट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मॉस्किटो. ये सारे प्रिवेंशन के मेथड्स हैं. इसमें देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मैंने अभी तक सिर्फ मलेरिया पे फोकस किया है, और मलेरिया पे ध्यान देते हुए अपने को क्या समझा, साइंस एंड सिम्टम्स अपन ने देखे, ठीक है. देन यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया, एंड प्रिवेंशन बता दिया. यहाँ तक कुछ डाउट है तो देखिए जरा, ठीक है. एक बार मैं यहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ. अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं. मैंने ऐसे ऐसे सिम्टम्स लिए हैं गाइस जो सिम्टम्स मेजरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सारे के सारे टेक्स्ट बुक के सिम्टम्स मैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. जो जो मेजर आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं. सो आई होप देखिए समझ में आ रहा है क्या. अगर समझ में आ रहा है तो अपन दूसरे इस पे जाएंगे फटाक से, ठीक है. चलो आगे जाए, चलो फटाक से आगे जाते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज which we have is called as amoebiasis. The second type of disease is called as amoebiasis. Now amoebiasis जो होता है it is a kind of a infection. It's a gastrointestinal infection. So यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, it is a gastrointestinal infection, ठीक है. It's a gastrointestinal infection मतलब क्या, it is going to affect your intestines or stomach, ठीक है. कौन कॉज करता है? सो एमीबाइसिस जो होता है it is caused by a parasite which is called as entamoeba histolytica. It is caused by entamoeba histolytica and it is actually, okay, it is infection of GIT का infection है. तो फटाक से अपन अभी गाइस साइंस एंड सिम्टम्स देख ले, चलो, ठीक है. सो नाउ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? नॉर्मल जो आपका पेट वगैरह दुखता है वो इस रिलेशन में दुख सकता है. सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले डेफिनेटली फीवर वगैरह तो रहेगा, फीवर विल बी देयर. सेकेंडली बिकॉज ये पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो यू विल ऑल्सो हैव डायरिया. सी फीवर, हेडेक, चिल्स ये काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है. डायरिया है हो सकता है. तीसरा, यू कैन फाइंड ब्लड इन स्टूल्स, मतलब फीसस के अंदर आपको ब्लड देखने को मिल सकता है. इट कैन ऑल्सो कॉज यू समथिंग कॉल्ड एज हेपेटोमेगाली. हेपेटोमेगाली मतलब लिवर का सूजन, ठीक है. सो लिवर माइट गेट इन्फेक्टेड. अगर लिवर इन्फेक्टेड हुआ इस वर्म्स के कारण, देन वी हैव अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज
अमीबिक लिवर एप्सेस, अमीबिक लिवर एप्सेस। ये एप्सेस मतलब क्या, पस लाइक फॉर्मेशन, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बेसिक सिम्टम्स में देखिए मैं क्या क्या बोलने का लिखा मेंशन किया यहाँ पे। फीवर वगैरह तो कॉमन रहता है गाइस, उसमें कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। देन यू हैव स्टूल्स, डेफिनेटली एब्डोमिनल पेन, ओके, ये भी यहाँ पे पॉइंट में ऐड कर दे रहा हूँ। यू विल हैव फिफ्थ विच इज एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, तो नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ इज इट ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है। सबसे पहला इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीको ओरल रूट। फीको ओरल मतलब अगर इसके जो वर्म्स रहेंगे फीसस में प्रेजेंट रहे तो कोई तो वेक्टर आएगा, वेक्टर से वो कोई तो फूड, ओपन फूड आइटम में जाएगा, ओपन फूड से आपके बॉडी में चला जाएगा। सो दिस इज फीको ओरल रूट, और एल्स इट कैन बी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर कुछ खराब रहेगा तो पानी या खाना, या फिर ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स, अगर आप गंदे हाथों से खा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अभी अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है आपके पास। सो बेसिकली यू हैव टू टैबलेट्स हियर, सो आई एम मेंशनिंग द नेम। इट कैन बी आइदर मेट्रोनिडाजोल, ओके, मेट्रोनिडाजोल कर सकते हैं, या फिर टिनिडाजोल आप खा सकते हैं। अभी ये आपके टेक्स्ट बुक वाले मैं नाम मेंशन कर रहा हूं, मैं मेरे मन से बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं, ट्रीटमेंट है। देन द नेक्स्ट कैन बी प्रिवेंशन। कैसे प्रिवेंट करेंगे, सो द बेस्ट मेथड इज टू मेंटेन हाइजीन, ओके, मेंटेन हाइजीन, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोइए, ठीक है। एंड ऑल्सो क्लीन और वॉश योर हैंड्स आफ्टर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। इट कैन बी चेंज ऑफ डाइपर, अगर बच्चे हैं घर पे तो डाइपर अगर आप बदल रहे हैं तो डाइपर के चेंज के बाद आप हाथ को धोइएगा। सो ये कुछ बेसिक है, ठीक है, इजी है। मैं कोशिश करता हूँ एक एक स्क्रीन पे एक एक बीमारी को खत्म करूँ, ठीक है। डेफिनेटली गाइस जैसे मैंने बताया इसका लाइफ साइकिल अवेलेबल है, बट अपन कवर नहीं करने वाले, इतना रेलेवेंट और इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अगर फिर भी आपको रेफर करना है डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज प्रिवेंशन। और पूरा एमीबाइसिस, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो देखिएगा, इस टेक अ 30 सेकेंड पॉज, यहाँ पे अगर कुछ रहेगा तो बताइए मुझे। समझ में आ रहा है पक्का से पक्का। अभी तीसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन पे जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अस्कैरियासिस, ठीक है, अस्कैरियासिस। अभी अस्कैरियासिस क्या है, अगेन इट्स अ वर्म इन्फेक्शन। तो चलो फटाक से अस्कैरियासिस पे। सो यू हैव थर्ड विच इज अस्कैरियासिस। Ascariasis. Now this ascariasis is again a worm infection. ठीक है, it's a worm infection. It's a nematodal infection, or it's a protozoal infection caused by Ascaris lumbricoids. ठीक है, Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoids is a parasite जो ये cause करता है, ठीक है। इट इज एन एंडोपैरासाइट और इट इज अ नीमैटोड, जैसे मैंने बताया एक टाइप का नीमैटोड भी है, नीमैटोड। और ये नीमैटोड क्या पैरासाइटिक है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ एंडोपैरासाइट, ठीक है। क्या क्या भैया साइंस एंड सिम्टम्स है वो देख लेते हैं फटाक से साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, क्या क्या, अगेन वही सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का इन्फेक्शन ही है,
डेफिनेटली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन ही है. सो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन यू हैव, व्हाट ऑल कंडीशंस यू कैन हैव. सबसे पहला यू कैन हैव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट. ओके, मतलब पेट दुखेगा. प्रेजेंस ऑफ लाइव वर्म्स इन द स्टूल्स. लाइव मतलब मूवेबल वर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं. यू कैन हैव इन्फेक्शन टू द लंग्स. लंग्स में इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है इसमें. देन यू कैन हैव लॉस ऑफ एपेटाइट. मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगना नहीं लगता है बिल्कुल भी. ठीक है, और ये जो होते हैं ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन गाइस क्या है, कैसे ट्रांसमिट करते हैं. नाउ इट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अभी स्टूडेंट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है. इट कैन बी आइदर, लेट मी चेंज द पेन, इट कैन बी आइदर फूड एंड वाटर विच इज कंटैमिनेटेड. ठीक है, जो खराब पानी या खाना है अगर वो पी लिया या खा लिया तो हो सकता है. ठीक है, एंड ठीक है, इसका लार्वा जो रहेगा, लार्वा, इट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. सो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे करके करके पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं. सो बेसिकली क्या एक्चुअली में क्या, पेट का इन्फेक्शन सिम्टम्स मेंशन्ड. आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अगेन यू कैन टेक एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स. ओके, द ट्रीटमेंट अवेलेबल, यू हैव द ट्रीटमेंट अवेलेबल, योर treatment can be anti-helminthic drugs. ठीक है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स और एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, दो नाम लिख के दे रहा हूं आपको. एक होता है विच इज कॉल्ड एज मेबेंडाजोल, विच इज और कॉल्ड एज लीवामिसोल, और यू कैन और एक ले लो पायरेंटेल. ठीक है, ये अगेन देखो गाइस, प्रिवेंशन क्या, हाइजीन ना. पैरासाइटिक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, तो डेफिनेटली सो मैं ब्रॉडली एक ही वर्ड में इसको लिख रहा हूं. ठीक है, आप इसको समझ लेना कि भाई वो क्या है. सो इट्स बेसिकली मेंटेन हाइजीन. ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करिए, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई भी इशू नहीं आने वाला है. ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है क्या. दिस इज स्कैरियसिस, खत्म. कुछ यहाँ पे डाउट रहेगा तो देखिए गाइस, नेक्स्ट बीमारी पे जा रहे हैं अपन. नेक्स्ट बीमारी विच इज कॉल्ड एज फिलेरियासिस और ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस. चलिए आगे जाते हैं. सो यू हैव नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज फिलेरियासिस. ठीक है, फिलेरियासिस. फिलेरियासिस गाइस क्या है, फिलेरियासिस अगेन इट्स नीमाटोडल इन्फेक्शन. नीमाटोडल मतलब क्या कि भाई वर्म इन्फेक्शन. ठीक है, वर्म इन्फेक्शन है, एंड 3 अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस ये भाई साहब कॉज कर सकते हैं, 3 अलग अलग टाइप के. सो इट इज सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि इट इज अ नीमाटोडल इन्फेक्शन, मतलब वही वर्म इन्फेक्शन, एंड 3 सब टाइप्स. ठीक है, यू हैव 3 सब टाइप्स. अभी कौन से सब टाइप्स है जरा देखिए. सबसे पहला यू हैव लिम्फेटिक फिलेरियासिस. ठीक है, वन यू हैव लिम्फेटिक फिलेरियासिस. देन यू हैव सीरस कैविटी फिलेरियासिस, एंड आपका जो तीसरा विच इज कॉल्ड एज सब क्यूटेनियस
फिलेरियासिस। ठीक है, अभी 3 अलग अलग वर्म्स कॉज करते हैं, तो मैं यहाँ पे उनके नाम भी लिख रहा हूँ। सबसे पहला सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस जो है, इट इज कॉज्ड बाय लोआ लोआ या फिर मॉन्सोनेला, ये स्पीशीज है। ठीक है, ये वर्म के स्पीशीज है। सीरस कैविटी जो रहता है, सीरस कैविटी, इट इज जनरली कॉज्ड बाय मॉन्सोनेला। ठीक है, मॉन्सोनेला। lymphatic filariasis is caused by 3 different worms. It is Wuchereria bancrofti, then you have Brugia malai, and then you have Brugia timuri. देखिएगा, इसे 3 नाम याद रखने, यस कोई ऑप्शन नहीं भैया, तीनों के तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, कुछ भी कर नहीं सकते। तीनों सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंटियासिस, एलिफेंट स्पुट सुना रहेगा, यस वही। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ठीक है, लिम्फेटिक फिलेरिया, ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस गाइस जो है, दिस इज योर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, इट इज एलिफेंटियासिस ऑल्सो। ठीक है, इसके देखते हैं फटाफट क्या गाइस, क्या क्या सिम्टम्स है इसके, क्या क्या सिम्टम्स सबसे पहला वो देखेंगे। ठीक है, आपके पास सबसे पहला है एडिमा। ओके, एडिमा का गाइस मतलब क्या होता है कि एडिमा का मतलब इन्फ्लेमेशन है थोड़ा, ठीक है, सूजन है, दैट इज योर एडिमा। ओके, सो दिस इज योर एडिमा विच कैन अकर इन केस ऑफ infections like lymphatic filariasis. It can also, one thing to note that lymphatic filariasis जो रहेगा, it can only occur, most probably it occurs in lower extremities. So it is generally occurs in lower extremities, मतलब it can be limbs or it can be scrotum. ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल सकता है ये, देयर कैन बी स्वोलन लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, अपन ने रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में कवर किया है इसको। लिम्फ नोड्स स्वेल अप हो सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन हैव आल्सो फ्लूइड अक्यूमुलेशन, इसकी वजह से आपने देखा होगा जो पैर होता है, पैर वो काफी ज्यादा इन्फ्लेम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना, हाउ कैन यू ट्रांसफर दिस? सो जो फिलेरियासिस होता है, फिलेरियासिस इट इज ट्रांसफर्ड बाय अ मॉस्किटो। ठीक है, सो दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन विल टॉक अबाउट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है भाई, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अभी देखो मलेरिया कौन था, एनोफिलीज, क्यूलेक्स अलग टाइप का मॉस्किटो है। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट चालू करेंगे? सो ट्रीटमेंट में दिस वन मेडिसिन विच इज कॉल्ड एज डाइइथाइल कार्बामाइन सिट्रेट। ठीक है, ये दवा चालू करिए। एंड गाइस अगेन प्रिवेंशन, देखो जो मलेरिया में प्रिवेंशन था वही है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई? तो भाई यूजिंग ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज नेट्स एक्सेट्रा। खत्म। देखिए समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट रहेगा क्या? देखिए जरा क्या बोल रहा हूं मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? पक्के से, आर यू श्योर? ठीक है, सो दिस इज फिलेरियासिस। अभी ये जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है अपना, दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइट। ठीक है,
अभी अपने को कहाँ पे जाना है, अभी अपने को समझना है बैक्टीरिया के बारे में। सो बैक्टीरिया का सबसे पहला जो आपका रहेगा, इट विल बी योर टाइफाइड, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, टाइफाइड के बारे में फटाक से देख लेते हैं। ओके, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया टाइफाइड, इट इज अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन कॉज किया? बैक्टीरिया। इट इज एक्चुअली इट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन्स, मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन्स आपके इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे है, एंड कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ओके, ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, एंड इसका जो इन्फेक्टिविटी है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ एंटीजन, ठीक है, एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द लाइपोपॉलीसैकेराइड। अ टाइप ऑफ एंटीजन विच इज प्रेजेंट हियर इज कॉल्ड एज नो एंटीजन। सो इसका पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी मतलब अबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। पैथोजेनिसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओ एंटीजन which is present on the lipopolysaccharide, and then there is H antigen which is present on flagella. flagella पता है ना, सर टेल होता है, टेल। सो उसके कारण यहाँ पे आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ टाइफाइड। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स, देयर कैन बी फीवर। चलो विल टॉक अबाउट सिम्टम्स ना। साइंस एंड सिम्टम, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम। नंबर 1, सबसे पहला फीवर एज हाई एज 104 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काफी ज्यादा फीवर हो सकता है। यू कैन हैव हेडेक या फिर थकान, फटीग, ठीक है, ये हो सकता है। देन डायरिया, पेट का इन्फेक्शन है ना, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये हो सकता है। देन यू हैव रोज कलर रैश, रोज कलर और रेड कलर रैशेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। यू कैन हैव लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट का लूज आउट होना, एंड आपका जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो गाइस है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट इज थ्रू फूड और वाटर, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? सो सबसे पहला फूड एंड वाटर, या फिर वेक्टर लगेंगे इनको दो, कॉकरोचेस या फिर हाउस फ्लाइज, ठीक है, ये दो लग सकते हैं, इनके थ्रू ये ट्रांसमिट कर पाएंगे। देन भैया ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट देखो, एक्सट्रीम कंडीशंस अगर हुआ, एक्सट्रीम सिनेरियो अगर हुआ, अंडर एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी, अगर कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी है, देन यू कैन, देयर विल हैव टू रिमूव गॉल ब्लैडर, कॉलीसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा इन्फेक्शन होने की वजह से। अगर नॉर्मल मैनेजेबल है, देन यू कैन टेक अ टैबलेट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोमाइसिटीन। स्टूडेंट्स, क्लोरोमाइसिटीन जो है, इट इज अ टाइप ऑफ एन एंटीबायोटिक, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एन एंटीबायोटिक। आपके पास कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल है इसके बारे में, तो आप वैक्सीन्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। भी वैक्सीन कौन से? इट कैन बी आइदर टाइफीम 6 या फिर TY21 अल्फा, ये दो टाइप के वैक्सीन आप ले सकते हैं, ठीक है। इजी है गाइस, इजी है। दिस इज टाइफाइड, खत्म हो गया भाई, टाइफाइड इतना ही है और कुछ नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू निमोनिया। निमोनिया अगेन इज बैक्टीरिया ना, बट निमोनिया का थोड़ा खास बात है, कुछ पता है? निमोनिया का थोड़ा कुछ स्पेशल है, देखते हैं फटक से। चलो वी आर मूविंग ऑन टू
the next part which is called as pneumonia, next bacterial infection. Okay, pneumonia. अब ये जो pneumonia है, pneumonia is a infection of the lung, or it's a lung infection. It's a lung infection and it can be caused by bacteria also. It can be caused by fungus also. It can be caused by virus. भैया तीनों के तीनों कॉज करते, इसका स्पेशलिटी। देखो अभी अगर मैंने जितने मैं नाम लिख रहा हूं उतना एटलीस्ट याद रखिएगा। बैक्टीरिया के बारे में अगर बात किया, you can have streptococcus pneumoniae. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae ले लीजिए। और अगर मान लो फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, फंगस के बारे में, तो फंगस के बारे में इज न्यूमोसिस्टाइटिस जेरोवेची या फिर न्यूमोसिस्टिस कारिनी। अगर मान लो वायरस है, virus, so you have different types of viruses. You can have adenovirus, influenza. So मान लो influenza, adenovirus, respiratory syncytial virus, etc. अभी एटलीस्ट 2-3 नाम लिख रहा हूं, इतना प्लीज करके जाना। सो बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस तीनों कॉज कर सकते हैं। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स, सबसे पहला, बिकॉज लंग इन्फेक्शन है तो देयर कैन बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत को आप क्या बोलते हो? डिस्निया। इट इज कॉल्ड एज डिस्निया। देन यू कैन ऑल्सो हैव लॉस ऑफ एपेटाइट, obviously fever and all these associated symptoms will be definitely there. headache वगैरह वो सब कॉमन रहेगा। ठीक है भाई, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट के लिए you have certain tablets available in the market. So you can have tablets like benzyl पेनिसिलिन ले सकते हो, या फिर आप एम्पिसिलिन ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेक क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, ये सारे दवाएं आप ले सकते हो। ठीक है, और इसका ना, एंड ऑल्सो वन थिंग रिमेंबर दैट गाइस, निमोनिया जो है ना, निमोनिया इज अ हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। कॉन्टेजियस मीनिंग कम्युनिकेबल है। सो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई और नहीं है बल्कि आप खुद ही हो। इसकी वजह से ध्यान देना ये है कि भैया जब भी ऐसा कोई लंग इन्फेक्शन हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए खुद के ऊपर, ताकि वो आजू बाजू में स्प्रेड ना हो पाए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया। ठीक है, तो अभी किधर जाएंगे? अभी अपन दूसरे डिजीज पे जाते हैं, विच इज योर कॉमन कोल्ड। अभी वायरस पे है, वायरस। So now we are going on to the common cold. ठीक है, कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड क्या है भाई? इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज nasopharyngitis और acute viral rhinopharyngitis। ठीक है, कॉमन कोल्ड है, सर्दी वगैरह इसके अंदर है। कौन कॉज करता है भाई? कॉमन कोल्ड जो होता है, कॉमन कोल्ड इट इज कॉज्ड बाय rhinoviruses और कोरोना वायरसेस। ठीक है, सो दिस इज देयर। साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं भाई।
साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, सबसे पहला सोर थ्रोट। ठीक है, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, कॉफ, कोल्ड। ठीक है, बेसिक डेफिनेटली फीवर रहेगा। अंडर सर्टन केसेस यू कैन ऑल्सो हैव कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस गाइस पता है क्या होता है? आंख आना, सुना है? आंख आना, वही है। रैशेस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर हेडेक। ठीक है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, इसको सिम्टोमेटिक ठीक करेंगे, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, वायरस है, सिम्टोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बट प्रिवेंशन क्या करेंगे? प्रिवेंशन करने के लिए कुछ नहीं भाई, ये कॉन्टेजियस है अगेन। सो व्हाट विल यू डू? स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम persons suffering from cold. Okay, khatam. Next you have what is called as fungus. So you have the fungal infection which is called as ringworm. ठीक है, ringworm। अभी ringworm जो है it is not a worm infection by the way, it's a misnomer। misnomer का मतलब वो बोल कुछ और रहा है और है कुछ और। इट्स अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, इट इज नॉट अ वर्म इन्फेक्शन, इट्स नॉट अ वर्म, इट्स अ फंगस। ठीक है, दो स्पीशीज कॉज्ड बाय टू स्पीशीज। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज ट्राइकोफाइटॉन, another is called as microsporum। सो वन इज ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम में दो फंगस है जो कॉज करते हैं। अगर सेम फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में हुआ ना, नेल्स, देन इट कैन कॉज समथिंग कॉल्ड एज ऑन्कोमाइकोसिस। ठीक है, सो बेसिकली ये लीजन्स होते हैं, लीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। सो दिस इन्फेक्शन इज नथिंग बट द लीजन मतलब जख्म। ओके, एक इंजरी टाइप, सर्क्यूलर ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, पक्के से। अभी अगर मान लो इसको प्रिवेंट करना रहेगा तो यू शुड अवॉइड शेयर्ड क्लोथ्स। ओके, एंड ट्रीटमेंट यू कैन डू, you can take different types of drugs like fluconazole या nystatin। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, so treatment can include fluconazole, ये ड्रग्स है, या फिर nystatin। ठीक है, ये कर लो। प्रिवेंशन अवॉइड शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है उससे क्लोथ को शेयर मत करिए। यहाँ पे अपन ना गए सारे, देखो इसके आगे अभी है विच इज डिजीज, बट अभी ना डिजीज नहीं, अभी डिजीज वाले कंपोनेंट्स नहीं है। अभी अपने को दो चीजें पढ़नी है, वन इज योर कैंसर, ठीक है, एंड अनदर इज योर HIV और एड्स। समझे? ओके, सो टू डिफरेंट पार्ट्स टू दिस। सो अभी इधर डिजीज ऑफिशियली खत्म हो जाता है। अभी अपन आगे जाते हैं और अभी अपन समझते हैं कैंसर फटाक से। ब्रीफली कैंसर देखते हैं, कैंसर क्या है। कैंसर, okay, so when we define the word cancer, students, cancer is nothing but abnormal and
रैपिड डिविजन ऑफ द सेल्स। आपके जो खुद के बॉडी के सेल्स है ना, वही अगर एबनॉर्मली डिवाइड कर दे रहे हैं और काफी तेजी से डिवाइड कर दे रहे हैं, सो दैट कंडीशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैंसर। ठीक है, कैंसर में एक प्रॉपर्टी लूज आउट होता है जो नॉर्मल सेल्स में होता है। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि कैंसरस सेल, आपके जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, कैंसरस सेल्स, दे लूज द प्रॉपर्टी, they lose the property of contact inhibition. Now students, what is contact inhibition? मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। नॉर्मल सेल है, मान लो दो डिशेस है आपके, ठीक है, पेट्री डिशेस जिसको आप बोल सकते हो। इधर से सेल है, मान लो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको समझ में आता है कि पेरीफेरी कहाँ पे डिवीजन रोक देगा। जैसे उसको पता चला कि भाई अभी रास्ता नहीं है आगे डिवाइड करने के लिए, वो ना डिवीजन क्या करता है, रोक देता है। बट ये नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल क्या करते पता है, वो आ रहे डिवाइड कर, उनको पता चला जगह खत्म, वो उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, उसके ऊपर डिवाइड करना चालू करते। तुम समझ रहे हो? तो इसके जैसे एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। दीज आर योर कैंसरस सेल्स। सो कैंसरस सेल्स क्या होते हैं, ये दे फॉर्म अ lump and this lump, ये जो lump होता है, this lump is called as tumor। समझना, इसी को ट्यूमर बोलते हैं। so cancer can be of two forms है। कैंसर जो है it can be of two different types, दो अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक होता है जिसको आप बोलते हो बिनाइन, दूसरा जो होता है विच इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज बिनाइन, अनदर इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट। अब ये बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या है कि अगर बाय चांस कैंसर जो है, कैंसर अगर लोकलाइज्ड फॉर्म का है, लोकलाइज्ड फॉर्म मतलब वो स्प्रेड नहीं हुआ है, एक ही जगह पे सीमित है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऐसे फॉर्म्स ऑफ कैंसर को आप बोलते हो बिनाइन। ठीक है, बिनाइन। और कभी कभार क्या होता है कि अगर कैंसर फैल गया, ठीक है, इफ द कैंसर स्प्रेड्स, ठीक है, अगर कैंसर फैल गया तो स्प्रेड होने के बाद इट कैन रीच टू डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स। और जब ये कंडीशन हो जाएगा तो देन इट इज कॉल्ड एज अ मैलिग्नेंट कैंसर। अभी तुम ही बताओ डेंजरस कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला ना, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है। सो मैलिग्नेंट कैंसर कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मेटास्टैसिस। ये मेटास्टैसिस का मतलब क्या है, अबिलिटी टू स्प्रेड। अगर कैंसर स्प्रेड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ मेटास्टैटिक कैंसर। मतलब क्या, जो स्प्रेड हो गया है, और अगर स्प्रेड हो गया तो डेंजरस तो वही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? सो आइदर इट कैन बी अ बिनाइन कैंसर और इट कैन बी अ मैलिग्नेंट कैंसर। पक्के से दो टाइप के अलग अलग कैंसर आपको मिल सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर्स। ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। ये तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखा। अभी अपन जाते हैं दूसरे टाइप्स पे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो इसका अगर तुमको ना मैलिग्नेंट और इसका मुझे बताना रहेगा, इट इज लाइक दिस। ये देखो, बिनाइन एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, मैलिग्नेंट स्प्रेड हो जाएगा। जो अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाएगा, अलग अलग टिश्यू से स्प्रेड हो जाएगा, तो डेंजरस या डैमेजिंग कौन रहेगा ज्यादा? ऑब्वियसली मैलिग्नेंट। और मैलिग्नेंट टैकल करने और मैनेज करने भी काफी डिफिकल्ट होता है। सो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, सो अभी अपन जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर।
ओके, टाइप्स ऑफ कैंसर। सबसे पहले यू हैव कार्सिनोमा। कार्सिनोमास, ये कार्सिनोमास जो होते हैं, कार्सिनोमास, दीज आर कैंसर्स, दीज आर द कैंसर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू मतलब आपके स्किन, ठीक है, स्किन वगैरह। इट कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, लाइक इट कैन हैव brain cancer, any organ related cancer, it can include lung cancer, it can include your kidney cancer वगैरह वगैरह वगैरह। so carcinomas क्या होते हैं? carcinomas are the cancers of the epithelial tissue, ठीक है, they are cancers of the epithelial tissue, breast cancer वगैरह। then you have the sarcomas, then you have sarcoma। sarcoma जो होता है, sarcoma, it is a cancer of connective tissue। it is a cancer of connective tissue। एक कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर का क्या मतलब है कि भाई ये तीन अलग अलग टाइप से आपको दिख सकता है। अगर ये बोन में है, बोन में है, तो इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसार्कोमा। अगर ये मसल में है, देन इट इज कॉल्ड एज मायोसार्कोमा। अगर ये कार्टिलेज में है, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, पक्के से ये दिस इज कार्सिनोमास, देन यू हैव सार्कोमास। अभी अपन जा रहे तीसरे पे, विच इज कॉल्ड एज लिम्फोमास। सो थर्ड इज लिम्फोमास। ये लिम्फोमास क्या है? लॉजिकली देखिए बराबर, लिम्फोमास इज द कैंसर of lymphatic system, lymphatic system का कैंसर। ठीक है, lymphatic system आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, lymphatic nodes, spleen, immune system वगैरह 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 वहां पे। ठीक है, then you have the leukemia। ठीक है, फोर्थ leukemia, simply leukemia is a, yes बरोबर, ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर। और ये ब्लड कैंसर जनरली कौन सी सेल्स को अफेक्ट करता है? WBCs। फिफ्थ यू हैव विच इज कॉल्ड एज, फिफ्थ इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडिनोकार्सिनोमास। ओके, और ये एडिनोकार्सिनोमास जो होते हैं, ये ऐसे टाइप के कैंसर्स है, ये ऐसे टाइप के कैंसर्स है जो आपको आपके ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड। सो कैंसर थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड और एनी काइंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज। ठीक है, ये 5 अलग अलग तरीके के कैंसर आपको हो गए। अभी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं भैया? बहुत सारे अलग अलग कॉजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला केमिकल्स। ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। चलो फटाक से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंटली इज द कॉजेस ऑफ कैंसर। ओके, तो सबसे पहला इज केमिकल्स। केमिकल्स, यहाँ पे केमिकल्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। देयर कैन बी निकोटीन,
it can be caffeine, oils, etc. ठीक है, then you have radiation, ठीक है, सेकेंड इस पे जाते हैं। रेडिएशन, इसके अंदर कौन सा, इट कैन हैव, वी कैन हैव एक्सरेज, यूवी रेज, गैमा रेज, ठीक है। तीसरा वायरसेस। वायरसेस में एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, ईबीवी। ईबीवी इज एप्स्टीन बार वायरस। अभी ये वायरस जो होता है ना, इसके पास ना एक पर्टिकुलर जीन होता है, इट इज कॉल्ड एज वी ऑन्क। दिस वी ऑन्क इज कॉल्ड एज वायरल ऑन्कोजीन। अगर ये जीन हमारे सेल्स के अंदर इंटीग्रेट हो गया तो हमारे सेल्स को एबनॉर्मल बनाने का कैपेसिटी ये पर्टिकुलर वायरस रखता है, डेफिनेटली रखता है, ठीक है। चौथा कैन बी एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन। एडिक्शन किसका, सी अल्कोहल, लिवर कैंसर, ठीक है। सो इट कैन बी स्मोकिंग, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी टोबैको, ठीक है। ये बेसिक जो आपको कैंसर कॉज करा सकते हैं। यहां तक कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हाउ कैन यू डू ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? सो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के थेरेपीज अवेलेबल है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन अबाउट ट्रीटमेंट मेथड्स। ठीक है, ट्रीटमेंट सबसे पहला मोस्ट कॉमनेस्ट कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी में यू यूज सर्टेन ड्रग्स, ओके। If we are using certain drugs and these drugs are called as anti-cancer drugs. Okay, we're using anti-cancer drugs and these can cause they can have a possibility of reducing the cancer, reducing the stage of the cancer. Then second you have what is called as radiation therapy. Okay, we have radiation therapy. अभी जो रेडिएशन थेरेपी भैया, रेडिएशन थेरेपी में क्या कर रहे हैं आप, यू आर बम्बार्डिंग द कैंसरस टिश्यू। सो बम्बार्डमेंट ऑफ कैंसर टिश्यू विथ radioactive substances. Radioactive substances can help to kill the cancerous cell, ठीक है। एग्जाम्पल दो देता हूं, कोबाल्ट ले लो, आयोडीन ले लो, ठीक है। ये अगर बाय चांस ट्यूमर है, ठीक है, अगर बाय चांस ट्यूमर है देन यू गो विथ सर्जरी, ठीक है। बट इट इज ओनली, ये सेल्यूलर बिनाइन कैंसर अगर है, ट्यूमर के फॉर्म में है तो ही आप ये कर सकते हैं भाई। तो सर्जरी आप करिए इन केस ऑफ ट्यूमर के केस में सर्जरी आप कर सकते हैं, बट अगेन 100% गारंटी आएगा इसका बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है। फोर्थ, इम्यूनोथेरेपी। फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी क्या है, यू आर यूजिंग सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बताया रहेगा इंटरफेरॉन, सो यू कैन यूज इंटरफेरॉन हियर टू ट्रीट, ओके। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट कैंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर तक ये दिस इज कैंसर, पूरा का पूरा
अब अपने को जाना है कहाँ पे, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द एड्स। ओके, सो अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट इस पे, विच इज कॉल्ड एज एड्स। ओके, सो वी नाउ टॉकिंग अबाउट एड्स। ठीक है, तो एड्स क्या है गाइस? एड्स फुल फॉर्म तो बचपन से पता होगा आपको, लोअर क्लासेस से। एड्स जो होता है, इट स्टैंड्स फॉर acquired immunodeficiency syndrome। कि ये जो एड्स होता है, इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। ठीक है, HIV और इंश्योर्ड HIV का फुल फॉर्म राइट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी virus। ठीक है, and it's an RNA virus, as you can see it has a genetic material of RNA, so it contains genetic material as RNA। ठीक है, RNA है 100 to 140 नैनोमीटर्स इन डायमीटर, बहुत छोटा है, 100 to 140 नैनोमीटर्स है साइज में, साइज के अंदर। ठीक है, एज यू कैन सी इट हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द सरफेस। ग्लाइकोप्रोटीन आप देख सकते हैं वहां पे। You have what is called as a matrix protein, which is outer layer, which is made up of P17। okay, and then you have a matrix, में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स प्रोटीन जो है P17 का है, एंड कैप्सिड प्रोटीन जो है P24 का है। सो इनर वाला जो है वहां पे, एज यू कैन सी, मैट्रिक्स प्रोटीन जो है मैट्रिक्स प्रोटीन is of P17। okay, नाम है उसका P17। and then you have another type of a glycoprotein which is called as GP41 and GP120। so they also have a glycoprotein structure। ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन दो है, एक होता है GP41 and another is GP120। ठीक है, इट कंटेन्स एंजाइम्स, बिकॉज एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए। RNA है ना, RNA वायरस है ना, तो यू रिक्वायर एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाई डू यू रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों चाहिए? बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैन हेल्प इन बाइंडिंग और कनेक्टिंग द RNA टू द ह्यूमन DNA। ठीक है, वो इन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए लगता है आपको। एंड ये जनरली जो होते हैं, ये T लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, एंड दे कैन डिस्ट्रॉय योर T लिम्फोसाइट्स और T सेल्स। ओके, सो HIV जो होता है, इट डिस्ट्रॉयज आवर T lymphocytes। I would like to highlight here कि भाई इनका mode of transmission क्या है। It can be transmitted from mother to child, it can be transmitted from blood, and it can also be transmitted from unsafe sexual contact। ठीक है, so it can be the mode of transmission, इधर ही लिख रहा हूँ, mode of transmission। Number 1, it can be unsafe sexual contact, which is not using any protection methods, and अगर either of the partner has HIV, then definitely फिर वो हो जाएगा। Then there can be blood, shared blood transfusion वगैरह, and then it can occur from mother to son also, या mother to baby। अगर मम्मी को HIV का वायरस है तो फिर डेफिनेटली वो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कैन बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी
clinical manifestations, which means ki how does the AIDS progress. So when we talk about AIDS, the progression of the AIDS goes like this. So we'll talk about it right now, just a second. So the progress of AIDS, ठीक है, AIDS कैसा फैलता है, मतलब बॉडी के अंदर कैसा फैलता है. इट्स एन इम्यूनो वायरस, मतलब इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है. सबसे पहला यू हैव इनिशियल इन्फेक्शन. यू हैव इनिशियल इन्फेक्शन. अब ये जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, इनिशियल इन्फेक्शन, ये इट कैन स्टे इनएक्टिव विच इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 2 to 8 weeks. ठीक है. सो वायरस बॉडी में जाएगा, बॉडी आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, बट रफली टाइम विल बी रिक्वायर्ड 2 to 8 weeks. ठीक है. दिस इज इनिशियल फेज ऑफ द इन्फेक्शन. The second phase of the infection is asymptomatic carrier stage. Asymptomatic मतलब क्या guys? जहाँ पे symptoms बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे आपको, and no symptom stage can be seen or can be observed for a very long period, where there is no signs or symptoms, nothing, कुछ भी नहीं है for the period of 6 months to up to 10 years. इतने लंबे समय तक सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे, तब तक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. तीसरा इज कॉल्ड एज ARC, विच इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स. भाई एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या, रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा आपके पास? You'll have clinical signs. It can be fever, there can be fatigue, okay, then you can have diarrhea, then you can have shortness of breath, okay, all of these things. Then the fourth and the final stage of AIDS is the full blown AIDS. Okay, this is your fourth full blown AIDS. क्या ये full blown AIDS जो रहेगा, it is actually the end stage of HIV infection, और ये characteristic होता है opportunistic infection का. So it's a end stage and generally opportunistic infections आते हैं. opportunistic मतलब क्या, देखो HIV वायरस का टारगेट क्या है, आपका इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम लोअर हो गया तो प्राइमरी इन्फेक्शन HIV तो है ही, बट साथ ही साथ क्या नहीं से बाकी सारे इन्फेक्शंस भी तो आ जाएंगे. वो सारे इन्फेक्शंस को आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हो. ठीक है. सी प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, बट यू शुड हैव अ कॉमन सेंस कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है. अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, डू नॉट यूज शेड नीडल्स, एंड get yourself tested if at all you have multiple sexual partners. Do not exchange anything, any kind of instrument or needles or razors or blades which have been shared between the two people. All of these things, if you avoid and take care of, I don't think so this can be a much of a problem. But yes, people generally fail to understand this, and there's a lack of awareness. Most importantly, awareness की कमी है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इसकी वजह से अवेयरनेस अगर रहेगा तो आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा. सो दिस इज एड्स, एंड इफ एट ऑल मान लो कि आपको एड्स है, ठीक है, एड्स है, अभी अपने मैंने यहाँ पे 4 स्टेजेस आपको बता दिया. 4 स्टेजेस हो गए, ठीक है. तो हाउ कैन यू ट्रीट इट अगर बाई चांस यू हैव. सो व्हाट आर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ. सो डायग्नोसिस में 2 मेथड्स आप यूज करते हो. जस्ट आपके सिलेबस में सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो मैं वही नाम लिख रहा हूँ. वन इज कॉल्ड एज एलाइजा. एलाइजा का फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है. एक ये है, और दूसरा एक टेस्ट होता है जिसको आप बोलते हो वेस्टर्न ब्लॉट. आप सिर्फ नाम याद रखें कि भाई 2 टेस्ट के जरिए आपको समझ में आ सकता है कि भैया आपको कुछ इशू है या नहीं है. एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल.
So there are different treatment methods available here in this case. जो few एक हाथ दूसरे आपको मैं यहाँ पे mention कर रहा हूँ. You can have different kind of treatment methods like something called as ART, which is anti-retroviral therapy. Retroviral में RNA वायरस, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. कौन सा दवा ले सकते हैं इसके अंदर? यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन लाइक टीनोफोवीर. एक टीनोफोवीर ले सकते हैं. देन यू कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एफीवायरेंस. ओके. Secondly, we also have one method which is called as HAART. Now this is a cocktail which is highly active anti-retroviral therapy. Now this is a combination therapy. It is a combination therapy, or a combination therapy can be used to cure or at least help the patient suffering from AIDS. Okay, so this can be the method and mechanism by which we can manage the people with AIDS. Okay, and one more important thing as a social gesture I would like to highlight about things is ki patients who suffer from AIDS should be dealt with sympathy, with utmost care, and they should not be pushed out of the society. Generally people, the moment they got to know that this person is suffering from AIDS, they'll just completely outthrow those people, and which is not good. And in general, we as students, we as civilized people of this nation, it's a responsibility that we manage these people with care. If nothing is there in your hands, if nothing is possible with you, the best case would be to allow other people to help. You can let other organizations which are managing this, which is a central organization called as NACO, can help these people to get the relevant treatment, can get the relevant counseling, and can help with the medications and better prospects of life. So it is not a fun thing, or it is not a shaming thing that people are generally trying to pull down these people and throw out of the society, which is not really good. So you as students should be your responsibility to ensure that if at all you come across of some of these people, you should not be really bullying them. Okay, and on that note, we are finishing this topic of disease. So right now, what have we finished? We have finished human health. We have finished disease in this module, which is long enough, and then we have finished जो disease का तो इधर खत्म किया. Then human health वाला अपन ने इसके पहले वाले मॉड्यूल में खत्म किया. तो human health and disease is over. There's one more module which will be pushing out, which will be adolescence, which will be the next module, which will be talking about general knowledge, more of general knowledge. So generally adolescence क्या है, drug abuse क्या है, वो सारी चीजों को अपन लेकर डिस्कस करेंगे. On that note, I think we should stop this module now. If at all you have any kind of doubt, students, I know ये काफी factual चीज है, but yeah, जितना मैंने लिखा है उतना प्लीज आप कर लीजिए, more than sufficient है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको, इतना भी आप अगर करेंगे. हाँ, यस, लाइफ साइकिल मैंने स्किप कर दिए हैं, सिर्फ मलेरिया का लाइफ साइकिल मैंने करवा दिया, बट आई डोंट थिंक सो देयर विल बी मच ऑफ इंपॉर्टेंस. अगर आपको फिर भी पढ़ना है, डेफिनेटली आप टेक्स्ट बुक को रेफर करिए. डाउट्स रहेगा तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हैं. बट जो इंपॉर्टेंट स्टफ था टॉपिक से रिलेटेड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव डन एंड कवर्ड इट आउट. And long story short, I think this module was clear to you. If at all you have any kind of doubts, please let us know in the comment section. We'll reply you back. And if you like our efforts and the video that we are pushing out, please subscribe to our YouTube channel, which is YSR Academy. Like the video, share the video with your friends, comment down, and also let us know what your feedback is with respect to the content that we're delivering. As I said in the previous modules also, that we have now started with computer science and IT. And it is like geography तो कब से चालू था. So अभी 3 मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो पेरीफेरी में जो रहते हैं, एक्स्ट्राज अलाइड सब्जेक्ट्स जो है, वो भी हम लोग कवर अभी कर रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये समझा होगा आज का टॉपिक. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में गाइस. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.